So the topic which we are going to discuss today is light-dependent reactions of the photosynthesis, as the name shows. So this is the photosynthesis, a type of the reaction in the photosynthesis which takes place in the presence of sunlight or which require the sunlight directly. So the light-dependent reactions are those reactions that use the light energy to make the two molecules which are needed for the next stage of the photosynthesis. And the next stage is dark reactions. Right, so in the light dependent reactions, the formation of ATP and NADPH takes place, and that is the energy conversion phase. The ATP is the energy storage molecule, and NADPH is actually having the assimilatory power. The photosystems and the electron transport chain components are embedded in the thylakoid membranes. As we have discussed yesterday, that the dark reactions takes place in the stroma of the chloroplast. The light-dependent reactions are occurring in the thylakoid membranes, right? Photosystems. What are photosystems? Actually, जो photosynthetic pigments present होते हैं, they are arranged in the form of the clusters in the chlorophyll, in the thylakoid membranes. They are known as the photosystems, right? And that photosystems, what is important feature of the photosystems is that they are important for the efficient absorption and utilization of the solar energy. So we can say that the photosystems हैं, these are the functional as well as the structural units of the protein complexes which are involved with the photosynthesis, right? Together they carry out the primary photochemistry of the photosynthesis. और जो photochemistry होती है photosynthesis की, वो क्या है कि सबसे पहले light energy की absorption होती है और उस energy को absorb, वो actually sunlight की energy और हमने उसको chemical energy के अंदर change करना होता है और energy का transfer होगा और electrons की movement होगी, तो as a result ATP की और NADPH की production होती है. सो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी की प्रोडक्शन होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए, दैट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, ऑल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट? फोटो बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. Non-cyclic photophosphorylation is the process which results in the movement of the electron in a non-cyclic manner, right? So there are two types of photophosphorylation. One is non-cyclic and the other is cyclic. साइक्लिक वो होता है जिसके अंदर यू कैन से कि एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होगा विच इज़ फोटोसिस्टम 2, बट इन नॉन साइक्लिक देयर बोथ ऑफ द फोटोसिस्टम 1 and 2 आर इन्वॉल्व, और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नॉन साइक्लिक मैनर के अंदर होता है. एज अ रिजल्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे हम लोग एनर्जी लेते हैं और एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है. इसके अंदर जो एक्चुअली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटोसिस्टम 2 से मूव करते हैं टुवर्ड्स द फोटोसिस्टम 1. अब यहाँ पर सिर्फ हम एक डायग्राम के अंदर ये देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम जो है उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. वी कैन सी कि एक एंटेना कॉम्प्लेक्स है एज वेल एज रिएक्शन सेंटर होते हैं, फोटॉन्स इनके ऊपर फॉल करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोटॉन आता है, स्ट्राइक करता है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है. फिर एज वेल एज फोटो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इसका रिएक्शन सेंटर हो गया एज वेल एज एंटेना कॉम्प्लेक्स हो गया. राइट, हेयर इज़ द डायग्राम जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि किस तरह से एटीपी की प्रोडक्शन होती है नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के अंदर. बट इन दिस डायग्राम वी कैन सी कि पहले फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है, फिर फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है. सारा एनर्जी का फ्लो का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक स्टेप जो 6 स्टेप है उसके अंदर NADPH की प्रोडक्शन होती है. एंड हेयर वी कैन सी 4 स्टेप के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस एटीपी की प्रोडक्शन होती है. तो दिस इज़ नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन और इसके अंदर दोनों के दोनों फोटोसिस्टम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, पिछली डायग्राम के अंदर अगर हम जनरली देखें, सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 है, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर है, देन प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम 1 विच इज़ P700. Then electron move towards the primary electron acceptor of photosystem 1. Then there is a ferredoxin and NADP plus reductase, and as a result NADPH is formed. अब ये जो साइकिल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह के MCQ आ जाता है दैट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कि कौन किस तरह से अरेंज है. पहले ऑप्शन में है प्लास्टोसाइनिन, फिर प्लास्टोक्यूनोन, फिर फ्यूओसाइनिन इज नॉट आर कंसर्न, एंड देन फेरिडॉक्सिन. सो हेयर वी कैन सी कि फेरिडॉक्सिन लास्ट पर है, एंड देन इन द फर्स्ट वी गेट द प्लास्टोक्यूनोन एंड देन plastocyanin, right? So this is the correct sequence. The third wale, this is not our, actually this is written in the correct sequence here. अच्छा,
अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो फोटो सिस्टम 2 है वो एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब चला जाता है तो उसके बाद एक साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन अकर करते हैं जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है अब वो डाउन हिल जाएगा, ठीक है, इट मूव्स टुवर्ड्स द प्लास्टोक्यूनोन जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से जब वो गुजरे तो वहाँ पर उन्होंने एनर्जी रिलीज़ कर दी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड कीमियोस्मोसिस द प्रोसेस जिसके अंदर वी कैन से कि ATP की प्रोडक्शन होती है, उस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहते हैं। फिर वो डाउन हिल मूव करता जाता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। जो प्लास्टोसाइनिन है ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, C फॉर कॉपर एंड C फॉर साइनिन, राइट। देन इस तरह से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 2 से मूव कर गया फोटो सिस्टम 1 की तरफ। इन द सेम जो फोटो सिस्टम 2 का प्रोसेस था, फोटो सिस्टम 1 से एक जब वो वहाँ पर आया तो वहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो जाता है and then the electron move towards the primary electron acceptor, right? Then that excited electron move towards the ferredoxin. जो ferredoxin है वो एक iron containing protein है, और जो plastocyanin थी that is copper containing protein, और जो plastocyanone था that is electron carrier. We should know about each. Then that excited electron move towards the NADP plus reductase. अब ये जो एंजाइम है उसने NADP पॉजिटिव को NADPH के अंदर चेंज कर देना होता है, और इस तरह से इस सारे प्रोसेस के अंदर विच इज़ नोन एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन NADPH and ATP की प्रोडक्शन हो जाती है। So broadly to remember what are the steps, number 1 energy is absorbed from the sun, नंबर 1। नंबर 2 जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एज वेल एज साइड बाय साइड हमारे पास फोटोलाइसिस भी होती है विच इज़ द ब्रेकडाउन और लाइसिस ऑफ द वाटर, जिसके रिजल्ट के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। अब जब सेकेंड टाइम ये प्रोसेस रिपीट होता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन, but here instead of production of ATP NADPH is produced from NADP positive in the presence of NADP plus reductase. Hydrogen ions diffuse through the protein channels and then ADP becomes ATP. So in this way NADPH and ATP are produced. Non-cyclic phosphorylation takes place in the granule thylakoid regions of the chloroplast. इस तरह के MCQ आ जाते हैं कि ये कहाँ पर अकर कर रहे हैं, it occurs in the thylakoid membranes और उसके granum region के अंदर जो stack of thylakoid membranes है that is called grana. And in non-cyclic phosphorylation both photosystem 1 and photosystem 2 are involved. We remember photosystem 2 is P680 and photosystem 1 is P700, right? दिस इज अनदर डायग्राम जो मैंने इसलिए डाली है ताकि हम देख सकें फोटोलाइसिस भी होती है। जैसे ही एक फोटो सिस्टम 2 का एटम जो है वो लाइट या फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और वो जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो एट द सेम टाइम वाटर की स्प्लिटिंग होती है और हमारे पास ऑक्सीजन की भी प्रोडक्शन होती है इस प्रोसेस के अंदर। लेट मी रिकॉल के सबसे पहले फोटोलाइसिस होगी और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेन से जब मूव करेगा एंड व्हेन दैट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू साइटोक्रोम कम्प्लेक्स ATP इज प्रोड्यूस। इस तरह के MCQ आ जाते हैं। एंड देन फोटो सिस्टम 1 के बाद जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन की तरफ मूव करता है तो NADP प्लस रिडक्टेज ने NADPH की प्रोडक्शन करनी होती है। यही सारा पता चल जाएगा तो किसी भी तरह के MCQ वी कैन सॉल्व इट। सो देयर आर सम MCQs। नंबर 1 इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इज अल्फा PC which is plastocyanin, beta plastocyanone, Charlie ferredoxin, delta none. तो C for copper and C for cyanin. Alpha. Photolysis results in the release of alpha oxygen, beta carbon dioxide, Charlie water, delta hydrogen ions. So photolysis is the breakdown of the water molecules. As a result, we get oxygen. So answer is alpha. Which of the following are generated in non-cyclic phosphorylation? This is important MCQ. Alpha is ATP, beta NADPH, Charlie oxygen, delta all of these. तो हमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और वो कब कब मिलती हैं वो भी स्टेप्स जो हैं that are very important to remember. तो our answer is delta. Non-cyclic phosphorylation is also known as alpha A scheme, beta T scheme, Charlie Z scheme and delta L scheme. डायग्राम में हमने देखा था कि वो फोटोसिस्टम 2
टू फोटोसिस्टम 1, जब भी नॉन साइक्लिक मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और एटीपी की प्रोडक्शन होती है तो वो जी स्कीम फॉर्म होती है. क्यों जी स्कीम है? लेट मी एक्सप्लेन कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूनी डायरेक्शनल, देयर इज़ वन डायरेक्शनल. ठीक है, ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर जो है ना वो टू डायरेक्शनल होता है. बट हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट साइकिल बैक एंड आर यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ NADP. Oxygen involved during the photolysis of the water, and that is why it is known as Z scheme, because जो उसकी shape बनती है electron flow की, that is in a Z manner. Next question is, during the operation of non-cyclic photophosphorylation, the immediate source of the electron to P700 is. This is not written in the book, but it is important. ठीक है, alpha is cytochrome, beta is plastocyanin, चार्ली इज़ प्लास्टोक्यूनोन एंड डेल्टा इज़ फेरिडॉक्सिन. तो जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है टू P700, विच इज़ एक्चुअली द फोटोसिस्टम 1, वो प्लास्टोसाइनिन है, which is a copper containing protein. Next is reduction of NADP takes place in cyclic photophosphorylation, non-cyclic, oxidative और non-oxidative. तो जो रिडक्शन है वो हमने डिस्कस कर ली कि ये non-cyclic photophosphorylation के अंदर occur करती है. आंसर इज़ बीटा. ये एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसको हम दोबारा से देख सकते हैं कि एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है. वाटर की लाइसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, NADPH प्रोड्यूस होता है. फर्स्ट फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व है एंड देन फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व. सो दैट इज़ ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन. थैंक यू सो मच.